और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, थल सेना प्रमुख ने एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, जिससे पाकिस्तान को रातों की नींद पाकिस्तान की उड़ गई। उन्होंने कार्यक्रम में एक बड़ा बयान दिया है कि सेना को पूरी छूट दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस तरह का जो आत्मविश्वास है, राजनीतिक दिशा है और राजनीतिक स्पष्टता है, वो पहली बार दिखी है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर ये थल सेना प्रमुख के द्वारा बातें कही गई हैं। कहा है कि कार्रवाई को लेकर सेना को खुली पूरी छूट दी गई थी और ऐसा पहली बार दिखा है कि जो राजनीतिक स्पष्टता है, राजनीतिक दिशा है और आत्मविश्वास, ये सब कुछ एक बार फिर से दिखा। 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. तो वहीं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में किन लक्ष्यों को तय किया गया था और योजना के बाद कैसे अंजाम दिया गया। 25th, we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed, and where a lot of terrorists were killed. और देखिए, थल सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर नाम देने के पीछे की भी कहानी बताई कि पीएम मोदी से मिलने के बाद कैसे इस ऑपरेशन को नाम सिंदूर दिया गया। 29th April, of course, was the time when we met the Prime Minister for the first time. How a small name of Sindoor connects the whole nation. And I think that was the connect which they brought the whole nation together for one cause. And that is the reason I think the whole nation was saying, why have you stopped? I think that's the question which was being asked. But of course, that has been amply answered by. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become Field Marshal, we must have won only, that's why he's become Field Marshal. थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन शतरंज की चाल चल रहा था, क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम था कि वो आगे क्या चाल चलेगा और हम क्या आगे कदम बढ़ाएंगे। And of Sindoor, what we did, we played chess. We did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the grey zone. Grey zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. So we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. वहीं नागपुर के कोराजी इलाके में शनिवार रात को बड़ा हादसा हो गया। महालक्ष्मी जगदम्बा देवस्थान के निर्माणाधीन गेट का एक हिस्सा अचानक से गिर गया, जिसमें 17 मजदूर घायल हो गए। हादसा शाम करीब 8:30 बजे हुआ, जब गेट का निर्माण काम चल रहा था। तभी एक स्लैब भर कर गिर गया, जिससे स्लैब के ऊपर खड़े और नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए। जो घटना घटी उसमें 16 मजदूर जो हैं वो जख्मी हुए हैं और सभी की स्थिति जो है वो अभी स्थिर है। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत मलबे में कोई भी मजदूर इस समय तक दबा हुआ होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन 16 मजदूर इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं। जैसे ही स्लैब गिरा, अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद बचाव दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। 3 मजदूर की हालत गंभीर बनी है। वहीं नागपुर के डीएम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, जिनकी माने तो हादसा स्लैब के लिए आरसीसी डालते वक्त हुआ है। यहाँ पर जो स्लैब का जो कास्टिंग का काम चल रहा था वो शायद नीचे आया है बांधकाम करते टाइम पे। उसमें 15 से करीब 16 लोग जख्मी है, वो सभी हॉस्पिटल पहुँचाए गए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने काउंट किया है, उसके सारे लेबर यहाँ पर सुरक्षित है, ऐसा उसने बताया है। इसमें अभी तक कोई मिसिंग है या कोई एब्सेंट है ऐसा कोई बताया नहीं उसने। फिर भी एक बार पूरा वेरीफाई करने का काम चल रहा है। बता दें, महालक्ष्मी जगदम्बा देवस्थान महाराष्ट्र का बड़ा तीर्थस्थल है, जिसका विकास काम नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण कर रहा है। इसी के तहत गेट की स्लैब डाली जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी मजदूर सुरक्षित है और मलबा गिरा था, तुरंत उसे मशीनों की मदद से हटा दिया गया।
हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के बाद किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। कुल्लू में कई वजहों से सेबों की बिक्री नहीं हो रही है और अगर किसी तरह से बिक रहे हैं तो सही दाम किसानों को नहीं मिल रहा है और मजबूरन किसान सेब को नाले में फेंक रहे हैं। जिन सेबों के बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं वे सेब कुल्लू के इस इलाके के नालों में पड़े हुए हैं। स्थानीय बीजेपी विधायक का दावा है कि ये आनी विधानसभा में केवल एक जगह की तस्वीर है। जो एचपीएमसी सेब खरीदता था अभी तक ये सेब खरीदा नहीं गया है। किसी सरकार के चहेते के पास ये यहाँ का टेंडर दिया है और मेरी पहले भी बात हुई थी, ये उन लोगों के पास दिया है जिनको भूख नहीं है। अगर भूख होती तो वो इस सेब को ले जाते और एचपीएमसी इसका जूस निकालती, कुछ और चीजें प्रोडक्ट निकालती। बाढ़ बारिश की वजह से इलाके के कई रास्ते बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से सेब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये हालात पैदा कर दिए हैं बागवानों के और मजबूर होके जो है ये सेब जो है यहाँ पे नालों के में फेंकना पड़ रहा है। अगर किसी तरीके से सेब मंडी तक पहुंच रहे हैं तो लोगों को सही दाम नहीं मिल रहा। इधर जिनके पास टेंडर है वे खरीद नहीं रहे हैं। नतीजन किसानों के पास इन्हें नाले में फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।